بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندے سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف۔ تفصیل سے آپ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ مجلس اور ٹی آر ایس غریب خاندانوں کے سروں سے مکان کی چھت چھین رہی ہے، محمد عباس کا الزام۔ سی پی ایم نے کلکٹریٹ پر احتجاج منظم کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ کل ہند مشاعرے کے موقع پر لی گئی تصویر کا تحفہ ایم ایل اے کو پیش کیا گیا۔ ایم ایل اے نے اس تصویر پر مسرت کا اظہار کیا اور منتظمین کی ستائش کی، کہا کہ پروگرام یادگار تھا۔ 3 زرعی قوانین اور دیگر مسائل کو لے کر مرکزی حکومت کے قدم پیچھے، کسانوں کی زبردست فتح، اے آئی کے ایم ایس کی جانب سے زبردست جشن کا اہتمام۔ اقلیتی مسائل کی یکسوئی اور حقوق کا حصول لازمی، ایک فعال و متحرک کمیٹی کی تشکیل۔ ثناء اللہ خان نے کہا کہ اقلیتی اداروں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ غریب مسلم خاندانوں کے مکانوں کے انہدام کی ذمہ داری ٹی آر ایس اور مجلسی قائدین پر عائد۔ بے گھر متاثرین شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے چھوٹے بچوں کے ساتھ بلک رہے ہیں، محمد عباس کا بیان۔ سی پی ایم کی جانب سے کلکٹریٹ پر احتجاج۔ دھرمپوری ہلز میں حال ہی میں ضلعی حکام کی ہدایت کے بعد کئی غریب خاندانوں کے مکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس انہدامی کارروائی کا ذمہ دار مجلسی قائدین کو قرار دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مجلسی قائدین کی ایما پر ہی ضلعی حکام نے یہ کارروائی انجام دی ہے۔ مقامی متاثرہ افراد گزشتہ 6 دن سے اس انہدامی کارروائی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کرتے آ رہے ہیں اور اب تک کئی سیاسی جماعتوں نے ان سے اظہار یگانگت کی۔ آج سی پی ایم کی جانب سے بھی متاثرہ افراد کے ساتھ ضلع کلکٹریٹ پر احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ اس احتجاجی ریالی اور دھرنے کی قیادت آواز تنظیم کے ریاستی صدر محمد عباس نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت اور مجلسی قائدین عوام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے عوام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد عباس نے بتایا کہ متاثرہ خاندان گزشتہ 15 سالوں سے ان علاقوں میں آباد ہے اور اب اچانک ہی ان کی اراضیوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے ان کے مکانوں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی غریب کا گھر بڑی مشکل سے بنتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی تمام عمر محنت کر کے جمع کی گئی پونجی کو لگا دیتا ہے اور یہ مکان اس کے خوابوں کی جنت ہوتا ہے، مگر ہوس اور لالچ کے شکار قائدین اپنے مفاد کے لیے ان غریب خاندانوں کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ محمد عباس نے کہا کہ مکان کی چھت سے محروم کر دیے گئے خاندان شدید سردی کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے؟ محمد عباس نے سوال اٹھایا کہ اس معاملے میں قصوروار کون ہے، مجلس یا ٹی آر ایس قائدین یا ضلع کلکٹر یا محکمہ ریونیو یا پھر محکمہ بلدیہ ہے؟ ان کو یہ جواب دینا ہوگا کہ پٹا رہنے کے باوجود ان خاندانوں کے مکانوں کو کیوں توڑا گیا۔ محمد عباس نے مطالبہ کیا کہ ان کو فوری مکانوں کی اثر نو تعمیر کے لیے معاوضہ فراہم کیا جائے۔ بصورت دیگر سی پی ایم اور آواز پارٹی کی جانب سے شدید احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سی پی ایم سٹی سیکریٹری ملیالا گووردھن، سجاتا نرسیا کرشنا، منیر احمد اور مقامی افراد موجود تھے۔ یہاں پہ جو ہے یہ میونسپل کا جو کارپوریشن کا میئر اور ڈپٹی میئر اور ایم آئی ایم کا جو ہے کارپوریٹرز کا ان دونوں کے بیچ میں ہے سو جو جھگڑا کے پالیٹکس کا جو ہے یہ کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے غریبوں کی گراں جو ہے توڑنے کے لیے کوشش کر رہے، غریبوں کی جو ہے لوٹ کے ان لوگوں کی جو ہے پیسہ لے کے اور اوپر سے ظلم کر رہے ہیں، اس کو جو ہے فوراً ختم کرنا۔ اگر جو ہے آئندہ ایسے کاروائی رہے تو ہم لوگ جو ہے خاموش بیٹھنے والا ہے۔ ابھی جو ہے لال جھنڈا ان لوگوں کے لیے جو ہے لڑنے کے لیے یہاں پہ ہو سکے تو ہم جو پورا بھوک ہڑتال جو ہے بیٹھ کے بھی اس کو مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ فوراً کلیکٹر اس میں انٹروین ہو کے اور لوکل جو منسٹر بھی ہے، کویتا بھی ہے، وہ لوگ جو ہے فوراً اس پہ جو ہے انوالو ہو کے اس کو فوراً سالو کرنا بول کے ہم سی پی ایم پارٹی کا طرف سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کل ہند مشاعرے کے موقع پر لی گئی تصویر کو منتظمین مشاعرہ نے ایم ایل اے کو تحفے میں پیش کیا۔ اس تصویر کی کشادگی کے موقع پر دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ منتظمین نے ایم ایل اے کی اردو دوستی کی زبردست ستائش کی۔
11 नवंबर 2021 को निजामाबाद के उर्दू सहाफ़ी MM माजिद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद अफजल, ब्यूरो चीफ परवाज टीवी के अलावा मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम टीवी ने एक खूबसूरत व बामकसद शाम का एहतमाम किया था, जिसको एक शाम मौलाना आज़ाद के नाम का उन्वान दिया गया था। इस मौके पर एक शानदार कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया था और साथ ही मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब और नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एवार्ड व तहनीत पेश की गई थी। इस पुरस्कार तकरीब में MLA निजामाबाद बीगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी और अपने किताब में उर्दू अशार पढ़कर उर्दूदा तबके को मशहूर कर दिया था। मुशायरे के मुंतज़मीन ने इस मुशायरे में MLA के खिताब के मौके पर की गई इनकी तकरीर के मौके पर ली गई तस्वीर को खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवाया और इस यादगार तस्वीर को MLA बीगला गणेश गुप्ता को तोहफे में पेश किया। इस तस्वीर की कुशादगी के मौके पर MM माजिद, मोहम्मद नईम खमर, मोहम्मद गौस और मोहम्मद अफजल खान के अलावा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सदर जिला जमीयत उल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान, नायब सदर सिटी TRS अब्दुल मतीन जोबली के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर MLA की उर्दू दोस्ती व मोहब्बत की मुंतज़मीन ने जबरदस्त सताइश की, जिस पर MLA ने खुलूस व मोहब्बत के इजहार पर मुंतज़मीन से इजहार तशक्कुर किया। बाबनसा पहाड़ी के करीब पुलिस की तनक़ी के दौरान गांजे की भारी मिकदार पकड़ी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 2 ऑटोस, 1 मोटरसाइकिल और 6 सेल फोन जब्त कर लिए। बाबनसा पहाड़ी के इलाके में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनख़ी की जा रही थी। इस मौके पर 2 मशकूक ऑटोस को देखकर पुलिस ने इनकी चौकसी से तलाशी ली। तलाशी के दौरान इन ऑटोस से गांजे की भारी मिकदार बरामद हुई। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर जी विनीत IPS ने बताया कि पुलिस ने अपनी तनख़ी के दौरान ऑटोस से 44 किलो वजनी गांजा बरामद किया, जो कि बाजार में कम अज कम 8 लाख रुपये की मालियत का हामिल है। इस सिलसिले में 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिनमें उस्मान खान, शेख मोइज, शेख सिराज, B सुधाकर और K राजू शामिल है। पुलिस ने इनको अदालती तहवील में भेज दिया, लेकिन जल्द ही इनको पुलिस रिमांड में लिया जाएगा और इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये गांजा कहां से लाया जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था और इसमें कौन कौन मुलविस है। पुलिस ने 2 ऑटोस, 1 मोटरसाइकिल और 6 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए। इन पे बाबनसाबा पहाड़ी में हमारा नॉर्थ रूरल CI का टीम और 5th टाउन PS के साथ व्हीकल चेकिंग करने के समय में 2 ऑटो और 1 बाइक सस्पिशियस मैनर में चल रहे थे। उसको पकड़ के चेकिंग करने पे हमको 44 kg का गांजा मिले। उसके अंदर इसका वर्थ है 8 लाख रुपीस और उसके साथ 6 सेलफोन, 1 मोटरसाइकिल और ये 2 ऑटो किसमें ये गांजा मिला उसको भी हम सीज़ करें। इसमें 6 लोग पकड़े गए हैं। उसमें 5 लोग का नाम है उस्मान खान, शेख मोइज, शेख सिराज, सदारी राजू और बद्रमानिया सुधाकर और एक इसमें जुवेनाइल हो। इन सबको अरेस्ट करके हम जुडिशियल कस्टडी दे रहे हैं और उसके बाद उनको हमारे कस्टडी में लेके उनका इंट्रोगेशन करेंगे। इनमें 2 लोगों के बारे में ऑलरेडी 2 केस है, उनके ऊपर PD एक्ट और हिस्ट्री शीट भी हम खुल रहे हैं। 1931 में की गई मर्दमशुमारी के लिहाज से BC आबादी 52% थी। इसके बाद तबकाती मर्दमशुमारी नहीं करवाई गई और BC तबके के हुकूक सल्ब किए गए। हम BC तबके और दलित तबके के साथ खड़े हैं और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। BLF कायद डंडी वेंकट का बयान। शहर के प्रेस क्लब में बहुजन लेफ्ट फ्रंट के ज़ेर एहतमाम दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मौके पर डंडी वेंकट ने कहा कि मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी BC तबके पर मुश्तमिल है और कहा कि 1931 में बरतानवी दौरे हुकूमत में BC तबके की मर्दमशुमारी की गई थी और 52% तनासुब दर्ज हुआ। इसके बाद फिर दोबारा मर्दमशुमारी नहीं की गई और उन्होंने माजी की हुकूमत कांग्रेस और BJP पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को हटाने का मुतालबा किया था तो BJP जैसी हुकूमत उसकी हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रिजर्वेशन के मामले में भी दम तोड़ रही है और दलितों के साथ बराए नाम पर साथ होने का इजहार करती है, जबकि BC तबका इंतहाई गुर्बत व फाका कशी का सामना कर रहा है और अब हम दलित बिरादरी के साथ हैं और उनकी हिमायत में खड़े हैं।
इस प्रोग्राम में वुकला बुस्सा राजेश्वर, आशा, नारायणा, डॉक्टर राजशेखर, बीसी एसोसिएशन के रियासती नायब सदर बोबली नरसैया, एसके हुसैन व दीगर बीसी तबके के कायदीन मौजूद थे। దేశవ్యాప్తంగా బీసీల జనగణ జరపాలని చెప్పేసి బీసీ సంఘాలు ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశాలు, సదస్సులు, సంతకాల సేకరణ ద్వారా మరి బీసీ జనగణ జరపాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ 1931లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు బీసీ జనగణ జరిగింది. అప్పుడు బ్రిటిష్ సర్కార్ 52% ఉంటారు ఈ దేశ జనాభాలో బీసీలను ప్రకటించారు. కానీ ఇవాళ ఈ 100 సంవత్సరాల్లో బీసీల జనాభా గణన జరిగింది లేదు. ఇది అంతం కాదు, ఆరంభం. గత గవర్నమెంట్ కూడా అంగ్రేజీ జమాన్లో మనకు కులగణన జరిగింది. ఇంతవరకు జరగలేదంటే మన ప్రభుత్వమా మాకు బీసీలకు స్వతంత్రం రాలేదనుకుంటున్నారా? మిత్రులారా, ఇది పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడితేనే ఇది వస్తుంది. కాబట్టి మనం బీసీలందరము 136 కులాలందరము ఏకమైతేనే మనం ఇది సాధించగలుగుతాం. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇదే ఉద్యమంతో మనం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. దేశంలో స్వతంత్రం వచ్చి దాదాపు 75 సంవత్సరాలు దాటిపోతున్న బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయంలోనే బీసీల వర్గీకరణ, బీసీల జనాభా ఎంత అనేది బ్రిటిష్ కాలంలోనే ప్రభుత్వము లెక్కలు తెరిచింది. ఈ దేశంలో 52% బీసీలు ఉన్నారు అనేది. మరి దాదాపు 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో మరి జెండాలు మారుతున్నాయి, ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి. కానీ వాళ్ళ బీసీల యొక్క లెక్కలను ఈనాటికి తేల్చలేదు. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దేశంలో ఉన్నటువంటి బీసీల జనగణని తేల్చాలా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ బీసీల లెక్కల్ని తేల్చాలి. TUWJ IJU की मेंबर साजी प्रोग्राम का आगाज जिला सदर बबली नरसैया ने इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सहाफी मुआशरे का जिम्मेदार फर्द होता है, इनमें इख्तिलाफात मुनासिब नहीं है। सब मिलकर खिदमत अंजाम दे तो बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। एडपली मंडल मुसखर के प्रेस क्लब में TUWJ की जानिब से मेंबरशिप प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और BC वेलफेयर सोसाइटी के रियासती नायब सदर डॉक्टर बोबली नरसैया ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस और सहाफ़ी कमेटियाँ चाहे कितनी ही क्यों न बना ले, मगर सबको मिलकर काम करना चाहिए और मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम देना होगा। और कहा कि अवाम को इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब मुत्तहिद होकर मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने तमाम सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों को मिलकर अवामी मसाइल की यकसवी और बग़ैर किसी खौफ के दुनिया को सच बताने और हुकूमत की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तलक़ीन की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के लिए 200 गज़ का प्लाट, हादसाती बीमा और कोरोना की वजह से मरने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदानों को 10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया और सहाफ़ियों के तौर पर खिदमत अंजाम देने वालों के लिए पेंशन स्कीम का आगाज़ किए जाने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज को यकीनी बनाया जाए और जिन सहाफ़ी के पास एक्रेडिटेशन कार्ड है उन्हें हेल्थ कार्ड मंजूर करे और हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी कानून लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल हल ना करेगी तो शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में TUWJ के नायब सदर देवीदास, जॉइंट सेक्रेटरी प्रमोद, प्रसाद, मोहन व दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। అది చిన్న పత్రికనా పెద్ద పత్రికనా ముఖ్యం కాదు. మన మిత్రుడు ఇలా జరిగిందంటే మనం అందరం ఒక యూనిట్గా ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధిస్తాం. ఎందుకంటే ఒక ఎద్దు అడుగుంటే ఒక ఎద్దు ఇడుగుంటే ఏ పని సాధించలేదు, బండి ముందుకు పోదు. కాబట్టి మిత్రులారా, మనం అందరం ఒక యూనిట్గా ఉందాం. ఇప్పుడు మిత్రుడు ఇన్ఛార్జ్ దేవదాస్గా స్వామి చెప్పినట్టు మీ మండలం నుంచి ఒక వైస్ ప్రెసిడెంటా, సెక్రటరీగా, మెంబరా ఏదైనా సరే మీ అంతా యూనిటీగా ఉండి ఒక మెంబర్ని అక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఒక ప్రతినిధిగా మీరు నిర్వహించగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఎవరు లేరు కాబట్టి మా జిల్లా సాఫర్ అయిన సీనియర్ మాకంటే సీనియరు ప్లస్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ చేసినా ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండాల్సి వచ్చింది. మీ బోధర్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి వెళ్ళి ఎవరు లేరు కాబట్టి అందుకోసం మిత్రులారా మీరు ఎంపిక చేయండి.
తన మంచి వ్యక్తిని హార్డ్ వర్కర్ని ఆ చిన్న పత్రికన పెద్ద పత్రికని కాకుండా ఎన్నో వస్తుంటాయి, ఎన్నో గవర్నమెంట్లు వచ్చినాయి ఇప్పటిదాకా. అందరికీ జిల్లా టీడబ్ల్యూజే ఐజీ తరఫున అభినందనలు తెలుపుతున్నా. ఎందుకంటే ఇంత చక్కటి పత్రికా విలేకరులు తెలంగాణ అప్లికేషన్ రోట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పెట్టి అందరికీ జిల్లాలో అన్ని మండల ప్రెస్ క్లబ్లకు ఆదర్శంగా నిలబడినందుకు మన ఎడపల్లి ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడితో పాటు మన సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఎడపల్లి మళ్ళా తోటి రిపోర్టర్లు అందరికీ కూడా అభినందనలు జిల్లా బాడీ నుంచి తెలుపుతున్నా. మిత్రులారా, స్టేట్ వైడ్గా మన టీడబ్ల్యూజే ఐజేయు సంఖ్య 36,000 పైచిల్లర ఉంది. టీడబ్ల్యూజే ఐజేయు సంఖ్య సభ్యత్వము మన జర్నలిస్టు యూనియన్ దశాబ్దాల చరిత్ర గల టీడబ్ల్యూజే ఐజేయు మన విలువ 36,000 పైకి ఉంది. అదే 134 దానికి ఎంత ఉంది సభ్యత్వం? 6,000. ఇప్పుడు కొత్తవి కలిపితే 6,000 వరకు వచ్చింది. ఇంకా వేరే తుమ్ముతో ఊడిపోయే ముక్కు లాంటి కొన్ని వచ్చినాయి సంఘాలు, వాటికి ఎంత ఉన్నాయి? 6,000, 600, 500, 300, 400. ఇప్పుడు మనోళ్ళు ఇక్కడ ఏమైందంటే పోటీతత్వం పెరిగింది. ఆ యూనియన్లో పోతే నాకు ప్రెసిడెంట్ नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना प्राइवेट इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन फेडरेशन का हैदराबाद में एक अहम तरीन इजलास प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन के मसाइल पर गौर खौस के बाद नुमाइंदगी के लिए लाए अमल को तय किया जाएगा। सिटी सदर मोहम्मद अहमद का बयान। 19 दिसंबर को सोमलिंग फंक्शन हॉल बोराबंडा हैदराबाद में तेलंगाना प्राइवेट इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रियासत भर के प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन शरीक होंगे। जिला निजामाबाद से भी सदर हनुमंत राव की क़ियादत में बड़ी तादाद में प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन शिरकत करेंगे। सिटी सदर मोहम्मद सलीम ने तमाम प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें, क्योंकि इस इजलास में इलेक्ट्रिशियन के मसाइल पर गौर व खौस करते हुए उनके मसाइल की एक्सवी
تحقیق کے لیے ایک لاہ عمل کو خطیت دی جائے گی اور ریاستی حکومت سے ان مسائل کی یکسوئی کروانے کا پرزور مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کئی نئے الیکٹریشین کو بھی لائسنس جاری کرنے کے لیے بھی نمائندگی کی جائے گی۔ محمد احمد نے کہا کہ اس پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر بھاری تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کرے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اس موقع پر نائب صدر فیروز علی، خازن محمد رفیع، جوائنٹ سیکریٹری شیخ عظیم، ایڈوائزر سید نصیر الدین کے علاوہ شیخ رحیم و دیگر موجود تھے۔ پریس میٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے سو سوریا پیٹ میں جو ہے سو بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ کیوں بولے تو ہر الیکٹریشین جو ہے سو بلا رہے ہیں وہاں پر جو ہے سو منسٹرز بھی آ رہے ہیں جو ہے سو وہاں جو ہے سو ہمارا اسٹیٹ پریزیڈنٹ کنڈل ریڈی اور جو ہے سو وہاں کے چیئرمین صاحب جو ہے سو سرینواس گوڑ اور الیکٹریکل منسٹر گنٹا کنڈلا جگدیش ریڈی کر انہوں بھی آ رہے ہیں اور ایم ایل ایس بھی آ رہے ہیں جو ہے سو ضلع پریشد چیئرمین بھی آ رہے ہیں، سمجھے نا، اور سدھاکر کمپنی کے جو ہے سو چیئرمین بھی آ رہے ہیں، پائپ کے وائر کے جو ہے سو بھی چیئرمین بھی آ رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے سو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر الیکٹریشین کو یہاں سے نظام آباد سے لے کر کے عادل آباد ہوندو یا جو ہے سو بودن ہوندو، کاماریڈی ہوندو، ایلاریڈی ہوندو اور جو ہے سو آرمور ہوندو، ہر لوگ جو ہے سو ایک سروس نکال کے اپن جو ہے سو سوریا پیٹ جا کے سوریا پیٹ میں اپنا جلسہ جو ہے جلسہ کو قائم کرنا چاہیے اور بہت بڑا پیمانے سے اس کو جو ہے سو آگے بڑھا کے گورنمنٹ لائسنسڈ ایک الیکٹریشین وائرمین کام کرنے والا، پرائیویٹ وائرمین کام کرنے والا بھی ہے، انہوں بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے سو تکلیفات ہے۔ گورنمنٹ کسی حالت کا جو ہے سو گورنمنٹ پہچانا نہیں جا رہا ہے، اس لیے گورنمنٹ سے اپنے ڈیمانڈز کے لیے اپن جو ہے سو گورنمنٹ سے جو ہے سو بات کرنا ضروری ہے۔ اپنے بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ بھی جو ہے سو اپنے کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اسٹیٹ حیدرآباد میں اسٹیٹ لیول میں ہو سکا تو اپنا جو ہے سو سی ایم صاحب جیسا لوگوں کو جو ہے سو بڑے بڑے جات والوں کو، بڑے بڑے ان لوگوں کو جو ہے سو ورکرز کو دو، سمجھا نا، ہینڈ کرافٹ والوں کو، ہر ایک کو جو ہے سو مدد کرتے ہوئے ان کو جو ہے سو ہر چیز میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہر چیز جو ہے سو انہوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ویسے ہم بھی یہ سوچ رہے کہ سی ایم جی سے ہم ہاتھ جوڑ کے یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی گورنمنٹ لائسنس الیکٹریکل وائرمین ایسوسیشن، میں ٹاؤن صدر محمد سلیم، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہنمنت راؤ صاحب اور اسٹیٹ کے آنریبل پریزیڈنٹ ہنمنت راؤ صاحب، یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ الیکٹریشین جو ورک کرتے ان کے حق کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے پروگرام ہے۔ بس میں یہ گزارش کرتا ہوں نظام آباد کے ہر ضلع سے آ رہے ہیں، نظام آباد سے بھی جتنا ہو سکتا اتنا جاؤ، ہر الیکٹریشین کے لیے ہے یہ، اور آ کے آپ لوگوں کیا ہے اس کے کیا رائٹس ہے آپ معلوم کر سکتے، اور ہو سکا تو راؤ صاحب سے بھی آپ رجوع ہو سکتے، ایسوسیشن سے بھی رجوع ہو سکتے۔ سب کے لیے آنے کے لیے میں اپنی طرف سے گزارش کروں۔ کسان ایسی فصلیں لگائے جس سے ان کو یقینی فائدہ ملے۔ سابق وزیر پی سدرشن ریڈی کا کسانوں کو مشورہ۔ انہوں نے نوی پیٹ کے دورے کے موقع پر کسانوں کو مکئی کی فصل نہ لگانے کی تلقین کی۔ ندی پیٹ منڈل مستقر کے نوت پلی گاؤں کا سابق ریاستی وزیر سدرشن ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے بات کی اور کسانوں سے ریاستی حکومت کی طرف سے زرعی پالیسیوں پر لیے گئے فیصلوں پر متبادل خیال کیا۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر نے کاشتکاروں کو مشورہ دیا کہ دھان کی فصل کی بجائے کوئی دوسری نفع بخش فصل کی کاشت کی جائے اور کہا کہ مکئی کی فصل کی کاشت کرنے پر کیڑا لگنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، لہٰذا کسان احتیاط برتتے ہوئے فصلوں کی کاشت کرے، اور کہا کہ موسم خریف کی گئی کاشتکاری دھان کی فصل کا کافی مقدار میں ذخیرہ باقی رہنے پر ریاستی و مرکزی حکومتیں موسم ربی میں کی جانے والی فصل کی کاشت نہ خریدنے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس فیصلے سے کسانوں کو نقصان و خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بعد ازاں انہوں نے کسانوں سے بات چیت کے بعد متبادل فصلوں پر غور کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پی سی سی جنرل سیکریٹری گڑگو گنگادھر، ضلع کانگریس کمیٹی منالا موہن ریڈی، طاہر بن حمدان و دیگر کانگریسی قائدین موجود تھے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 3 زرعی قوانین کی واپسی کسانوں کی ایک بڑی جیت۔ کسانوں نے 1 سال طویل جدوجہد کے دوران کئی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اب کسانوں کو ٹھوس تیقنات دیے گئے ہیں۔ وی پربھاکر کا بیان۔ AIKMS کی جانب سے جشن کا اہتمام۔
AIKMS निजामाबाद जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़राअत मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ लड़ाई की जीत के मौके पर कोट गली NR भवन में एक रैली निकाली गई। इस रैली में AIKMS के सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने हिस्सा लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी ज़राई शोबे को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 ज़राई मुखालिफ क़वानीन को लाए थे, जिसके खिलाफ किसान मुसलसल 1 साल से ज़ायद अरसे से एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज में कई किसानों की जानें तक ज़ाय हो गई, मगर किसानों ने इसके खिलाफ काफ़ी जद्दोजहद की और कामयाबी हासिल की और कहा कि हुकूमत ने किसानों के मुतालबात पर मुस्बित तयक़ुनात दिए, जिस पर किसानों ने एहतजाज को मुअत्तल कर दिया। यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। इस मौके पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में न्यू डेमोक्रेसी कायद वी कृष्णा, सीनियर कायद के यादगिरी व दीगर मौजूद थे। हुकूमत यूनिवर्सिटी के मसाइल की एकसुई पर तवज्जो दे। 3 महीने में 3 रजिस्ट्रार की तब्दीली मसाइल का हल नहीं बल्कि मसाइल में इजाफे का सबब है। SFI कायदीन का बयान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के बुनियादी मसाइल की एकसुई वक्त की अहम जरूरत। बिशपल्ली मंडल मुस्तकिल के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रूबरू SFI की क़ियादत में तेलंगाना यूनिवर्सिटी कमेटी की जानिब से मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर ज़िला सदर R विघ्नेश ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बेशुमार मसाइल है, उन मसाइल को हल करने की अशद ज़रूरत है और 3 महीनों में 3 रजिस्ट्रार को तब्दील किया गया। रजिस्ट्रार को तब्दील करने के बजाय हुकूमत यूनिवर्सिटी में तालीम के शोबे की तरक्की पर तवज्जो देती तो अच्छा था। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी के तलबा को बुनियादी सहूलतें तक मैसर नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम करे और यूनिवर्सिटी में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात करवाए और बेखादगियों के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कहा कि यूनिवर्सिटी को दिए गए 200 करोड़ रुपये के वादे को पूरा करते हुए तालीम के शोबे को तरक्की दी जानी चाहिए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के नायब सदर श्रीसैलम, राहुल, क्रांति, रतन, विशाल, मल्लेश, रघुवेंद्र व दीगर मौजूद थे। భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ SFI తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో అక్రమాలకు అడ్డాగా, అవినీతికి అడ్డాగా ఇవాళ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం మారుతున్న పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా దానిలో ఉన్న ఇవాళ ముగ్గురిని ఇవాళ 3 నెలల్లో వ్యవధిలో ఇవాళ ముగ్గురిని రిజిస్టర్లుగా మార్చడంలో ఏ అంతర్యం ఉందని ఇవాళ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం SFI తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కమిటీగా మేము ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. దాంతోపాటుగా ఇవాళ ఏదైతే అక్రమంగా దాంతోపాటుగా 2 నెలలు గడుస్తున్నా కూడా ఇవాళ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇవాళ మౌలిక సదుపాయాలు దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నా కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हमारे इस्लाफ ने जायदादें मिल्लत के मफाद में छोड़ी थी, जिनमें कुछ अहम कॉलेजेस भी शामिल है, लेकिन इन कॉलेजेस की इंतजामिया मनमानी फीस वसूल करते हुए मंशा वक्त की खिलाफ वर्जी कर रही है। सनाउल्लाह खान का बयान। हैदराबाद में मदीना एजुकेशन सेंटर में मुस्लिम अकाबरीन व दानिशवरान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिसमें मदु काबिल ज़िक्र अफराद में जस्टिस I इस्माइल, शफीकुज़्ज़मा IAS, गयूर, ज़हीर अली खान और दीगर शामिल थे। इस इजलास में एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई जो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करेगी। इस कमेटी को माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ऑफ तेलंगाना का नाम दिया गया, जिसके सदर की हैसियत से सनाउल्लाह खान का इंतखाब अमल में आया, जबकि हैदर अली एजाजी सदर, नायब सदर मोहम्मद मसूद अली, जनरल सेक्रेटरी सईद उद्दीन तनवीर का इंतखाब अमल में आया। जॉइंट सेक्रेटरी सैयद बसीरुद्दीन और खाजिन MA हमीद होंगे। सनाउल्लाह खान ने कहा कि हमारे इस्लाफ ने मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार जायदादें और असासाजात छोड़े थे, मगर इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें बाज़ कॉलेजेस भी शामिल है, जिसकी इंतज़ामिया मंशाए वक्त के खिलाफ जाते हुए मनमानी फ़ीसें वसूल कर रही है। आज बतारीख 10 दिसंबर मदीना एजुकेशन सेंटर में तेलंगाना के दानिशवरों ने मिलकर माइनॉरिटीज़ राइट प्रोटेक्शन फोरम की एक सोसाइटी का इनाग्रल प्रोग्राम रखा। इस सोसाइटी के इनाग्रल का मकसद उन तमाम माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ के नाम से कायम किए गए हैं, वहाँ पर होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हैदराबाद में ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं
जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने आने वाली नस्ल की तालीम के लिए वक्फ किया, जिनमें काबिल ज़िक्र मोफमजा कॉलेज, अनवारुल्लूम कॉलेज, मदीना, मैस्को, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी नस्ल के लिए तालीम के लिए वक्फ किया। बदबख्ती की बात है कि हमारे पास इन इंस्टीट्यूटों को वो एक सोसाइटी बनाकर वो लोग इसको कॉरपोरेट तरीके से वर्क कर रहे हैं और किसी भी माइनॉरिटीज़ को उससे फ़ायदा उठाने नहीं दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूट हैं उन तमाम इंस्टीट्यूट के अंदर माइनॉरिटीज़ को तमाम तरह की सहूलतों के साथ एडमिशन मिले और तालीम मिले। इख्तिताम से ख़ास हेडलाइन। मजलिस और टीआरएस गरीब खानदानों के सरों से मकान की छत छीन रही है, मोहम्मद अब्बास का इल्जाम। सीपीएम ने कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इंसाफ का मुतालबा किया। कुल हिंद मुशायरे के मौके पर ली गई तस्वीर का तोहफा एमएलए को पेश किया गया। एमएलए ने इस तस्वीर पर मसरत का इजहार किया और मुंतज़मीन की सताइश की, कहा कि प्रोग्राम यादगार था। 3 ज़राई क़वानीन और दीगर मसाइल को लेकर मरकजी हुकूमत के कदम पीछे, किसानों की जबरदस्त फतेह। AIKMS की जानिब से जबरदस्त जश्न का एहतमाम। अक़लियती मसाइल की यकसुई हुकूक का हसूल लाजमी, एक फाल व मुतहरिक कमेटी की तश्कील। सनाउल्लाह खान ने कहा कि अक़लियती इदारों का इस्तेहसाल हो रहा है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।